Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. Today is third lecture of geography. We were discussing geography chapter number 3, oceans and seas. In previous lecture I have told you about some landforms associated with water bodies, in which I told you or cleared your all concept and differences between Gulf, Bay, Bight, Strait, Peninsula, Island and Isthmus with the help of diagram. Okay, but before going to start today's lesson, I am giving you a short review about this concept. There is a little difference between all these concepts. Firstly, we discuss sea, a smaller body of water. It is known as sea. Gulf, if we talk about Gulf, Bay and Bight, there is a little difference between these three concepts, Gulf, Bay and Bight. What is Gulf? A large but narrow part of ocean. A large but narrow part. But when large as well as vast part of ocean, it is known as Bay. But when bay is extended, then it's called bight. Gulf is large but narrow, बड़ा है लेकिन तंग है. बे large but vast, फैला हुआ है, ठीक है, कुछ हद तक, to some extent. But bight is vast and extended, जो बहुत फैला हुआ है, बड़ा भी है, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है? bight. Okay, clear so far? Gulf is large but narrow, bay is large but vast, bight is vast and extended. Then we discuss strait, a narrow passage of water which connect two large bodies of water. It is known as strait. Then we discuss peninsula, area of land which is surrounded by ocean water from three sides, not from four sides, not only from three sides. But when the area of land surrounded by water from all sides, it is known as island. Then we discuss isthmus, a narrow strip of land which connect two large masses of land. It is known as isthmus. Clear so far? Okay, now comes to our today's topic, which is configuration of ocean floor. Student, what is meaning of configuration? Configuration means arrangement or shape. Because a student like Earth, the surface of ocean floor is not uniform. Not uniform means not same. So the fluctuation in ocean floors is divided into the following parts. Firstly, continental shelf. What is continental shelf? What is the definition of continental shelf? The shallow part, shallow means not deep. The shallow part of sea which lies adjacent to the coastal areas is called continental shelf. The shallow part of sea, sea का वो part जो कि इतना deep नहीं होता, which is near to the coastal areas जो साहिली इलाकों के करीब नहीं होते हैं, it is known as continental shelf. Student, continental shelf को किसी भी country की territory भी कहा जाता है, बिकॉज जो किसी भी कंट्री की जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस पार्ट ऑफ ओशन हैज़ वाइटल इंपॉर्टेंस फ्राम जियोग्राफिकली, फ्राम पॉलिटिकली एंड एज वेल एज़ फ्राम इकनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि किसी भी कंट्री की जो माइनिंग होती है, फिशिंग होती है, ट्रेड रूट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सम फिशरमैन जो है वो फिशिंग करते हुए वो पाकिस्तान की जो लिमिट थी या जो पाकिस्तान की टेरिटरी थी, जो पाकिस्तान की बाउंड्री थी, वो उसको क्रॉस कर गया, वो इंडियन जो है वो उसमें टेरिटरी में इंट्रेंस उन्होंने ले ली, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया के होता है, इंडियन जो है वो ने क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. तो वो क्या होता है, वो यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी भी कंट्री की बाउंड्री को कहा जाता है, ठीक है. वो पार्ट जो कि इतना डीप नहीं होता सी का और जो नियर टू होता है कोस्टल एरियाज़ के, इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अ कंट्री मैरीटाइम बॉर्डर्स, किसी भी कंट्री का मैरीटाइम बॉर्डर्स. व्हाट इज़ मैरीटाइम बॉर्डर्स? बॉर्डर दैट इज़ formed by the sea which tell territorial water of any country, ठीक है. किसी भी कंट्री के जो बॉर्डर्स होते हैं, किसी भी कंट्री के राइट्स ऑफ माइनिंग, किसी भी कंट्री की फिशिंग, ट्रेड रूट्स, कुछ ऑयल एंड गैस के जो है वो डिस्कवर करना है, कुछ और प्लानिंग है, ये सब की सब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. हेयर वी हैव डायग्राम ऑफ ocean floor and what it contains of. Okay,
In this diagram you can easily see what is continental shelf. This area is known as continental shelf. Which area? It is the shallow part of sea which is near to the coastal areas. It is called continental shelf. It is important from geographically, politically and economically point of view. And mining, fishing, trade routes, strategic planning, it's all depends upon continental shelf. वो एरिया जो कि इतना डीप या गहरा नहीं होता, विच इज़ नियर टू द कोस्टल एरियाज़. इसको किसी भी कंट्री के टेरिटरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में किसी भी कंट्री के विदाउट परमिशन जो है वो एंट्रेंस अलाउ नहीं होती. ओके, क्लियर सो फार? Okay, then we have continental slope. What is continental slope? The gentle sloping continental shelf ends at a steep slope which descends into the deep ocean. This is called continental slope. Continental slope क्या होता है? जब continental shelf जो है वो continental shelf के पास जो गहराई आती है, steep slope होती है, उसे क्या कहा जाता है? continental slope कहा जाता है. और क्योंकि वो slope जो होती है, जो steep slope होती है, वो और नीचे चली जाती है डीप ओशन, समंदर की गहराई में. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है. व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल स्लोप? किसी भी जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो गहराई आती है, इस जो स्टीप स्लोप होती है इनटू द डीप ओशन, इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप. हेयर यू हैव डायग्राम. What is where is continental slope? It is continental slope. ठीक है, continental slope. कहाँ से continental slope start हुआ है? When continental shelf, ठीक है, continental shelf ends at steep slope. steep, ये steep area, ठीक है, तिरछा जो कि है, जहाँ ढलवान आ गई है, जहाँ गहराई आ गई है, और वो जो है वो नीचे और हो रही है, कहाँ? डीप ओशन में जा रही है. ठीक है, इट इज़ नोन एज continental slope. ओके, क्लियर सो फॉर? Then we have submarine trenches and canyons. What is meaning of trenches? Student, trenches गड्ढे, खंदक को कहा जाता है. और here submarine trenches and canyons क्या है? The continental slope merges into the deepest part of the ocean, which comprises of narrow and deep V-shaped canyons called trenches. These trenches descends up to 10 km underwater. जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्दर डीप हो जाता है, पहले हमने क्या कहा था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. स्टूडेंट, फर्स्टली वी डिस्कस कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या था? शैलो पार्ट ऑफ सी, नॉट डीप. शैलो पार्ट ऑफ सी विच इज़ नियर टू द कोस्टल एरियाज, इट इज़, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. देन व्हेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ डीप होता जाता है, उसमें गहराई आ रही है, स्टीप स्लोप हो रहा है, इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप. डीप ओशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, इसमें स्लोप आई है. ठीक है, स्टीप स्लोप आ गई है. लेकिन द कॉन्टिनेंटल सबमरीन ट्रेंचेस क्या होते हैं? व्हेन द कॉन्टिनेंटल स्लोप मर्ज इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन. जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो फर्दर डीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, और उसकी वी शेप बन जाती है. यहाँ आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वी शेप बनी हुई है डायग्राम में. ठीक है, वी शेप का कैन्यॉन्स बन जाते हैं. इनको क्या कहा जाता है? ट्रेंचेस कहा जाता है. इट इज़ नोन एज ट्रेंचेस. दीज ट्रेंचेस डेसेंट्स अप टू 10 किलोमीटर अंडर वाटर. उनकी गहराई जो है वो पानी के अंदर 10 किलोमीटर तक होती है. ओके, क्लियर सो फार? देन वी हैव ओशियानिक रिजेस. व्हाट इज ओशियानिक रिजेस? What is oceanic ridges, student? In sea layer वॉल्केनोस जो है वो इरप्शन होती रहती है. वॉल्केनोस इरप्शन और मैग्मा के ऊपर आने और देन सॉलिडिफाई होने से जो है वो रिजेस की फॉर्म ले लेते हैं, माउंटेन की फॉर्म ले लेते हैं. दिस इज़ कॉल्ड मिड ओशियानिक रिजेस फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ मैग्मा एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. इट इज़ नोन एज ओशियानिक रिजेस. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओशियानिक इज़ यूजली comprised of vast undulating plain. This part has an average depth of 4500 to 6000 meter. Okay, clear so far? In diagram you can easily see where is oceanic ridges.
स्टार्ट क्या था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा था, जो कि शैलो पार्ट ऑफ सी था, जो कि इतना गहरा नहीं था, नॉट सो डीप। देन क्या हुआ, वो स्टीप होता गया, थोड़ा सा गहराई होती गई, देन वो किस में टर्न हो गया, किस में चेंज हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। जब वो मज़ीद गहरा हुआ, फर्दर उसमें फर्दर डीप हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो उसने क्या, कौन सी शेप ले ली, वी शेप ले ली, जिसको हमने क्या कहा, सबमरीन ट्रेंचेस और कैनियंस, ठीक है, जो इतना डीपेस्ट था कि वो अंडर वाटर 10 किलोमीटर तक डेसेंट्स होता है। देन क्या हुआ, ड्यू टू इरप्शन ऑफ मैग्मा और ड्यू टू द वॉल्केनोस इरप्शन, मैग्मा के ऊपर आने और सॉलिडिफाई होने से जो रिजिस की फॉर्म बन जाती है, जो कि एक माउंटेन शेप बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, ओशियानिक रिजिस, ठीक है, क्लियर सो फार। ओके, नाउ we have diary student in long question, in your exercise here we have long question number 2. Analyze different landforms found on the ocean floor. For this question you have to mark on your book answer page. Now open your book, page number 25 to 26, from configuration ocean floor to oceanic ridges, जो कि आपके आज का लेक्चर था, वो जो है वो इसका आंसर है. यू हैव टू मार्क ऑन योर बुक. Okay, student, make sure you have to do or you have to write only short questions in your separate sheet, but if we talk about long question, you have to mark on your book. Okay student, here we end today's class. Take care and Allah Hafiz.